morning, everyone. Today is your first class of chemistry, and today's topic is periodic table, elementary ideas about the structure of atom. Okay, so this is our first chapter of chemistry. So I want you to write down the headline of today's topic. Okay. So see students, whenever you go to study about literature, about English literature, you require 26 alphabets. Likewise, whenever you go to study chemistry, you have to know the basic periodic table. So this is our periodic table. So our periodic table is consist of 18 coulombs. Okay, our periodic table is consist of 18 coulombs. These coulombs are known as groups. Okay, and how many rows we have? We have 7 rows. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rows. These 2 extra rows are included in this 6 rows. We won't talk much about these lanthanoids and actinoids. Okay, but our basic periodic table is consist of 18 coulombs known as groups and 17 rows known as periods. So this is our first coulomb. This is our first coulomb. Our first coulomb consists of hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So first, let's talk about the first 20 elements present in the periodic table, starting with hydrogen. So hydrogen is situated in the extreme left of the periodic table and it is a non-metal, means it is a gas. So let's construct the periodic table first. We should have the practice of writing the periodic table, okay? So I request all of you to generate a practice to write the periodic table. So our periodic table is consist of how many groups? 18. 1, 2, then I will start from 13 again. 13, 14, 15, 16, 17, then 18. See, I am not considering from 3rd to 12 coulomb, मतलब 3rd to 12 जो groups है, I am not considering them. ये बाद में पता चलेगा. First, I am going to write from 1 to then 13 to 18. Now our first element is hydrogen. First element is hydrogen. So the atom का जो number होता है ना, atomic number of hydrogen is also 1. Okay, we will first write the periodic table up to calcium. Then we will learn what is atomic number and what is atomic mass. The first element is hydrogen, the next element is helium. Okay, so I have completed the first period. It was the first period. Then what is our second period? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. उसके बाद oxygen के बाद fluorine. Yes, atomic number 9. Then neon. That is the 10th element. Okay. So I have completed the first period, the second period. This was the first period, the second period, and the third period. I am going to write. After neon, the 11th element is sodium. Na, sodium, Mg, magnesium. Then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Then 19th, K, potassium, Ca, calcium, 20. 19th, then 20. So this is our fourth period. So see, students, the basic idea regarding the periodic table is our periodic table is consist of metals plus non-metals plus metalloids. Okay,
What are them? Metals. You know what is metal? This is a very basic idea, and we will talk later about metal and non-metal. So metal has some basic properties. Non-metal also have their basic characteristics, basic properties. So metals are basically solid. Metals are basically solid. The only one metal which is present in liquid state is mercury, which is Hg, mercury. तो basically metals किस में होते हैं? Solid state में होते हैं. नॉन मेटल्स किस में होते हैं? नॉन मेटल सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और मोस्टली गैस में भी पाए जाते हैं. और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स आर सॉलिड, mostly solid. Okay, mostly solid. Mostly they are solid. Now let me tell you, in this periodic table, the left hand part represents metals, and the extreme right hand part, it's not our extreme right hand part, मतलब left hand part metal को denote करते हैं, right hand part denote करते हैं non metals को. Okay, and in middle ये जो zigzag format में जो elements आने वाले हैं ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब होते हैं metalloids. Now what is metalloids? Metalloids are neither metal nor non-metal. They have properties of both metal and non-metal, and they have some different kind of properties, boron, silicon, and they have so many utility in our day-to-day life. The first thing you have to practice this periodic table so that you know up to 20th element calcium. मतलब more than that you have to know 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now let's talk how we can make this periodic table easier for us. Okay, easier for us. First I will write the elements of the first group. तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं एल्काली मेटल्स. क्या बोलते हैं इसको? एल्काली मेटल्स. अब क्यों बोलते हैं एल्काली मेटल्स? एक्सेप्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के, हाँ, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल. ओके, हाइड्रोजन को छोड़ के द अनदर एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? अब तुम लोगों को जानना है अप टू कैल्शियम. अगर फ्रेंसियम तक जान सकते हो तो इट विल बी गुड, बट इफ यू नो अप टू कैल्शियम दिस इज ऑल्सो फाइन. अब कैसे याद रखोगे इसको? यू कैन ट्राई निमोनिक्स. इन द निमोनिक्स कभी भी लॉजिक मत ढूंढना, ठीक है? तो देयर इज ए गर्ल, द नेम ऑफ द गर्ल इज हलीना. व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? हलीना. यू कैन स्किप इट टू लीना. ओके, हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. हलीना ने की रब से फरियाद. What is the mnemonics? हलीना ने की रब से फरियाद. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. And I am putting a star above francium because it is a radioactive particle and we won't talk much about francium. So this is our first group of our periodic table and this is known as alkali metal. So why they are called as alkali metal? Because इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2 ऑक्साइड, जैसे मेटल के सभी ऑक्साइड, मेटल के जितने भी ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम हो गया, तो मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली बेसिक, ये तो सबको पता है. जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. सो मेटल ऑक्साइड अगर तुम लोगों को पता भी नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर जो मेटल का जो मैंने ऑक्साइड बनाया है ना, वो बेसिक होता है, मोस्टली बेसिक ही होता है. तो इस बेसिक ऑक्साइड को whenever we dissolve in water, they eventually gives hydroxide. मतलब ये यहाँ पे पानी देने से ये क्या देगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा. सोडियम ऑक्साइड में पानी देने से हमको क्या देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे. So as you will get lithium hydroxide. What are them? They are बेस और एल्काली. मतलब जो बेस है, जो सिलेक्टिव बेस हमारे पास है, इफ दोज बेसेस आर डिसॉल्व इन वाटर टू गिव यू एल्काली, देन दिस आर नोन एज एल्काली मेटल्स. इसीलिए इसको एल्काली मेटल्स बोलते हैं. मतलब ये हमको बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दिस इज प्रोवाइडिंग ए बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन मतलब जिसका पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 होता है.
तो इसीलिए इसको बोलते हैं एल्काली मेटल्स. ओके, लाइकवाइज द सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल इज नोन एज alkaline earth metals. Alkaline earth metals, and from where we will start? We will start from hydrogen, helium, lithium, then beryllium. Beryllium is the first element. Now see all the elements. Here I want to mention two important metal. One is beryllium and another is barium. See, it is a heavy metal, no doubt. It is a heavy metal. It is situated in the lower part of the periodic table. But barium, you have got so many compound of barium in your class 10 standard. Likewise, you got a PPT of barium chloride. तुम लोगों को मिला था barium chloride का एक PPT जिसका कलर होता है white. कहाँ मिला था? In the double displacement reaction. Means you are familiar with these two metal. मतलब बेरिलियम को भी जानते हो तुम लोग, बेरियम को भी जानते हो. Now how we will remember this second group? So I have a mnemonics. You can say it: Beti mange car scooter, Bap Razi. Okay. So you can remember this mnemonics is very interesting. बेटी भी मांग सकती है, likewise बेटा जैसे मांगता है. तो बेटी मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बाप राजी, बेरियम, देन रेडियम. अगेन रेडियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. तो ऐसे ही अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा. अब तुम लोगों को सब कुछ नहीं करना है, कैल्शियम तक याद रखो. पूरा अगर ग्रुप्स याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे टेक्निक फॉलो करोगे ना तो इट विल बी इजियर. ओके, तो लेट मी कंप्लीट. हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? राइट एक्सट्रीम, इट इज हीलियम. लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, देन बोरोन. अब इस बोरोन बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? 13 ग्रुप. बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, उसके नीचे होता है गैलियम, उसके नीचे होता है इंडियम एंड उसके नीचे होता है थेलियम. तो इसको कैसे बोल सकते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. एंड दिस निमोनिक्स फॉर 13th ग्रुप. बोरोन के बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 17 ग्रुप. हाँ, इस 17 ग्रुप के बारे में थोड़ा बात करते हैं. And I am telling it again and again. You have to rewrite this periodic table. You have to construct the periodic table by own. So that तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, और जब भी प्रैक्टिस होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि आई नो द पीरियडिक टेबल. अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सा एलिमेंट है? ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है. कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस 4 ओनली. इस 4 को रिमेंबर करने से ही होगा. ये 4 कौन है? इसको बोलते हैं हेलोजेंस. हेलोजेंस बोलते हैं इसको. किसको हेलोजेंस बोलते हैं? 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेन. दे आर बेसिकली नॉन मेटल. ये सब नॉन मेटल है. इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, इसके स्टेट के बारे में थोड़ा बात करते हैं. जैसे फ्लोरीन एक क्या होता है? फ्लोरीन इज अ गैस, इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर लाइक F2. फ्लोरीन इज ऑल्सो रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव. क्लोरीन के बारे में बात करते हैं. क्लोरीन इज ऑल्सो गैस. Cl2 मतलब इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. जब ये हो गया एटॉम और एलिमेंट, whenever they exist in our atmosphere in the nature, they exist in diatomic form. इसका एटोमिसिटी हो गया है 2. अब फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस. व्हाट अबाउट ब्रोमीन? Br2. ओके, Br2, ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Br2, एंड इट इज ए लिक्विड. मतलब इसका नेचुरली ओकरिंग स्टेट क्या है? लिक्विड होता है. सो इट मे क्वेश्चन which non-metal exists in liquid state. जैसे which metal exists in liquid state? Mercury. मैंने बताया था mercury liquid state में exist करता है, though it is a metal. Likewise, the non-metal is bromine, exists in liquid state. Now, what about iodine? Iodine के balls मिलते हैं, छोटे छोटे ball in our laboratory to do various experiment. So it has a shining surface and it is solid basically. So iodine is solid. But out of the 4 halogen, fluorine, chlorine are gas, bromine is liquid, iodine is solid. Okay, and now let's go towards the 18 group element. 18 group element को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम noble gas. और क्या बोलते हैं? inert gas. ओके, नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं. पहले ये कौन कौन से है देख लेते हैं.
स्टार्टिंग विथ हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, देन एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, उसके बाद आता है आर्गॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36 एटॉमिक नंबर। इट्स ओके इफ यू रिमेंबर अप टू आर्गॉन, इट इज वेरी फाइन इफ यू रिमेंबर अप टू आर्गॉन। अगर पूरा का पूरा याद हो सके तो अच्छी बात है, क्योंकि ये नोबल गैस है, लाइक नोबल पीपल इन आवर सोसाइटी दैट डू नॉट they does not talk much, right? They do not interact much. So likewise this noble gas or noble elements do not interact with other element. अगर तुम मुझे पूछो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे एटमोस्फियर पे, इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस ओनली, मतलब मोनो एटॉमिक गैस बन के ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब आर्गॉन कैसे मिलेगा हमको, ऐसे ही मिलेगा आर्गॉन, इसका एटॉमिसिटी 1 है, मतलब व्हेनेवर आर्गॉन एग्जिस्ट, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, लाइक ओनली सिंगल एटॉम, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्बन के नीचे कौन आता है, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। मतलब ऐसे याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के नीचे कौन होता है, सल्फर। तो ऑक्सीजन के जो जो प्रॉपर्टीज होगे ना वो रिजेंबल्स होगे, दैट वी गॉट इन द क्लास 10 स्टैंडर्ड। क्या मिला था 10 स्टैंडर्ड में, इस पीरियडिक टेबल के प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। एंड माय टास्क इज टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। जैसे in a groups all the elements has same outermost electrons and same valency, मतलब ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है which is -2, सल्फर का भी 2 होगा। जैसे इसका वैलेंसी क्या होता है, 17 ग्रुप का वैलेंसी होता है -1। let me write again, हाइड्रोजन, helium, this is 18, right? Then 17, 16, 15, 14, then 13, और यहाँ पे 1 and 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। So see, I am going to talk about the valency. Now what is valency? Valency is not valence electron, huh? Valency is the binding capacity of a element. Just in the left hand side of the periodic table we have metals, and we know metals have electropositive in nature. The nature of the metals are electropositive, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेंगे, to become noble, to achieve octet, argon, krypton, xenon, मतलब नोबल बनना है। किसको नोबल बनना है, सबको। पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको नोबल बनना है। नोबल का मतलब क्या है, नोबल का मतलब है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट होना, ऑक्टेट अचीव करना। वन ऑफ द एक्सेप्शन इज हीलियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, दैट इज 2। मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है। मतलब जब भी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के शेल में, इन द के शेल वी विल पुट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इसी को बोलते हैं डुप्लेट। मतलब स्टेबिलिटी के लिए डुप्लेट भी अचीव कर सकते हैं कोई भी एटॉम, और ऑक्टेट भी अचीव कर सकता है कोई भी एटॉम। मतलब नियरेस्ट एटॉम of helium can achieve duplet. Okay, now they will eventually lose electron, therefore their valency is +1 because they lose electron. Electron is a negatively charged particle, so whenever a electron is lost by an element, वो एलिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। When likewise जब हम अपने लाइफ से निगेटिविटी को छोड़ते हैं हम क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। जब भी
हमको कोई एडवाइस करता है ना, बी पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव बनोगे, निगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। लाइकवाइज ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, व्हेनेवर एन एटॉम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट्स बिकम पॉजिटिव, और जब भी कोई एटॉम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। व्हाई? because electron is a negatively charged particle. Whenever you lose electron you become positive, whenever you gain electron you become negative. So first group element that are known as alkali metals have +1 valency, likewise this has +2 valency. What about the group 13 element? It has +3 valency. Why it has 3 valency? Let's see. Aluminium का atomic number हो गया 13. And one more thing I want to say, ये जो हमारा सॉरी, हाँ मतलब ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पीरियड है, मतलब वही, मतलब ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है। ऑलराइट, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, एंड दिस इज आवर थर्ड पीरियड। आई वांट टू से जो थर्ड पीरियड के एटॉम्स है ना, फ्रॉम 13, इसका एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर सेम है। देखो, यू कैन रिमेंबर इट इजिली। क्या रिमेंबर कर सकते हो? फ्रॉम थर्ड पीरियड, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना, फ्रॉम 13, इसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लाइक ग्रुप नंबर, दिस 13, it is 14, it is 15, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, and argon is 18. Are you getting my point? Okay, now let's talk about aluminium. Aluminium का atomic number है 13. अगर atomic number 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2.8.3 होगा। And aluminium gain noble gas configuration by losing the outermost electron, जो है 3, तो इसीलिए aluminium का क्या वैलेंसी क्या है? +3 होता है। 14 ग्रुप का वैलेंसी होता है 4, इसका वैलेंसी होता है 4। We will talk about this later। 15 का होता है -3, 16 का होता है -2, 17 का होता है -1, एंड 18 का वैलेंसी क्या होता है? 18 का वैलेंसी मतलब क्या? इसको ऑक्टेट बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मतलब they do not have tendency to lose or gain electron because they are already stable। मतलब नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, they do not have tendency to gain electron as well as to lose electron, that's why the valency of the noble gas will be 0। I want you to note the valency of the elements according to their group। Okay, so what is the name of the first groups? Alkali metals। second is alkaline earth metals। तो क्यों बोलते हैं इसको alkaline earth metal? वैसे ही, मतलब जैसे हम लोगों ने इसको alkali metal बोला था, मतलब मैग्नीशियम का क्या बन सकता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन सकता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड से we can get, whenever magnesium oxide, which is basically a base, get dissolved in water, give us MgOH whole 2, and this is alkali। alkali मतलब क्या? alkali वो होते हैं जो aqueous solution में OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं, those are known as alkali। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। Now they are known as alkaline earth metal because they are available in our earth crust। Likewise, हम 16 का भी अगर याद कर ले तो अच्छा होगा। 16 एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस, इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस, 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, और 18 को बोलते हैं नोबल गैस। ऑलराइट, so this is our periodic table। I want to see you the periodic table from very first element। हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, then radium। Both francium and radium are radioactive particle। Then boron, aluminium, gallium, indium, thallium।
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, पीबी, लेड, एसएन, टीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब देखो यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्मेट में कुछ है, कहां से है? 13 से है। 13 मतलब ग्रुप 13 से ही क्या है? जिगजैग फॉर्मेट। इस जिगजैग फॉर्मेट में कितने एलिमेंट्स है देखो, मतलब तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस फॉर्मेट, 1 2 3 4 5 6 7। तो आई वांट यू टू राइट द नेम ऑफ 7 मेटलॉइड। इसी को बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब ये है मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल्स, इसको सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं, जो मेटल्स भी नहीं होते, नॉन मेटल्स भी नहीं होते। द फर्स्ट मेटलॉइड इज बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, देन सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, germanium atomic number 32, arsenic atomic number 33, antimony Sb, the representing symbol of antimony is Sb, this is 51, then tellurium Te atomic number 52, and the last one is polonium 84. So polonium was an element that was discovered by Marie Curie, and Marie Curie got Nobel Prize for discovering polonium as well as radium. She discovered radium accidentally. Okay, how many elements we have? 7 elements. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, then polonium. Just इसके नाम याद रखो, ये हो गए हमारे 17 सेमी मेटल्स और मेटलॉइड। अब मैंने अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया है। फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12, ये क्या है? ग्रुप नंबर 3 to 12 ये है क्या? हम लोगों ने बात किया है 1 and 2 के बारे में और 13 to 18 के बारे में, ठीक है? राइट डाउन इस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को एक साथ बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमने पढ़ लिया। और इसको बोलते हैं फ्रॉम बोरॉन, स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, हीलियम इंक्लूडिंग, इस सबको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? और इसको बोलते हैं फ्रॉम 3 to 12, मतलब ये जो एलिमेंट है ना, Sc, स्कैंडियम अप टू जिंक, मतलब 30 तक। अगर तुम लोगों को 30 तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है उन लोगों को 30 तक तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट 30 तक आना चाहिए। अगर 30 तक हो गया तो 36 क्रिप्टॉन तक तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट फर्स्ट ऐसा अटेम्प्ट करो कि मुझको 20 तक करना है। कैसे करोगे? पहले अपना ऐसा बना लो जो मुझे पहले 10 तक करना है, पहले हाइड्रोजन से नियॉन तक करना है, उसके बाद हम 20 तक करेंगे, उसके बाद हम 30 तक करेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा। और इसको लिखो, लिख के करो, देन इट विल बी मोर इजियर टू रिमेंबर। नाउ दिस portion, the blue colored portion, is known as D block element. D block elements, और इसको बोलते हैं इसको एक साथ बोलते हैं F block elements. ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? और एक नाम है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। सुना ही होगा तुम लोगों ने नाम, दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल। So we have first transition series, second transition series from ytterbium to cadmium, third transition series lanthanum, starting from hafnium to mercury. Okay, ठीक है। Now see, so again here I am highlighting the S block element. The most important thing is S block element में ये तो आता ही है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट तो आते ही है। कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और ये हीलियम भी आता है. व्हाई? बिकॉज हीलियम इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल एंड इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक. मतलब तुम लोग अगर जानना चाहते हो एस ब्लॉक में क्यों आता है, इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो हम लोग क्लास 10 स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ऐसे था, k शेल, l शेल, m शेल, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर हम एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ns जो 1 to 2 तक जाता है, मतलब n मतलब 1, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल S1, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये तुम लोगों को इतना डेप्थ तक नहीं चाहिए. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई हीलियम इज सेड टू बी s ब्लॉक एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2. तो s ऑर्बिटल में ही इसका 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. Okay, now these are the p block elements, p block elements except helium. तो ये वाला हो गया p block element. Now see how do we represent an element? Representation of an element. You have to write representation of an element. एक एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट के सिंबल को हम मिडिल में ऐसे लिखते हैं, सपोज x, इसके लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट मतलब सफिक्स में हम लिखते हैं z, और यहाँ पे लिखते हैं हम इसको a, जिसका मतलब है हम यहाँ पे लिखते हैं एटॉम का नंबर, atomic number, and it provides us so many information, and this is atomic mass. So atomic number is represented by Z. If you know about Z of any atom, then you know the numbers of proton as well as number of electron. It is a great information. And what is A? It is a mass of an atom. So we evaluate mass of an atom, that is n plus p, where n is the number of neutrons and p is the number of protons. Okay, तो दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, और एटॉम भी बोल सकते हो. ये जेड क्या होता है? एटॉम का नंबर. जैसे हाइड्रोजन का हो गया 1, हीलियम का हो गया 2, ये मतलब एटॉम का नंबर ही नहीं है, इट गिव्स अप सो मेनी इंफॉर्मेशन. जैसे पहले दिन में क्या होता था, पहले जमाने में जब पीरियडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो पीरियडिक टेबल एक दिन में तो नहीं बना, तो पीरियडिक टेबल का जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था ना, वो था बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एंड दैट वाज अ ग्रेट ड्रॉबैक. Today's modern periodic table is based on atomic number. कैसे? जैसे हम लिखते हैं ना, हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन के बाद क्या लिखते हैं? हीलियम लिखते हैं, उसके बाद लिथियम लिखते हैं. ये जो ऑर्डर है ना, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है एटॉम्स को लिखने वाला, ये किसके बेसिस पे है? ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4. ये क्या होता है? ये इसका एटॉम का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं. अब एटॉम का नंबर मतलब क्या? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. मतलब इफ यू नो the atomic number, if you know the numbers of proton and as well as you know the numbers of electron. अब ये proton electron क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, पहले just you need to learn so how do you represent an element. Let's take a few example. जैसे मुझको कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, I will write like carbon 6 and here I will write 12. मुझे सपोज ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है, I will represent oxygen like this. मुझको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करेंगे. हीलियम को कैसे करेंगे? हीलियम नीचे लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे मास. ये क्या है? हीलियम का एटॉम का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है. जैसे सोडियम को कैसे लिखेंगे? Na, ऐसे लिखेंगे. इट इज एटॉमिक नंबर इज 11 एंड मास इज 23. अब मास मुझे कैसे पता चला? मास मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है, तुम लोगों को अप टू 20 करना है, ठीक है, तो 20 तक जितने भी एलिमेंट्स के मास हमको जरूरत होते हैं, उसके मास मोस्ट ऑफ द टाइम ट्वाइस होते हैं, नॉट ऑल द टाइम. तो इट इज काइंड ऑफ इजियर टू रिमेंबर. जैसे मैग्नीशियम को पकड़ लो, सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम. इट इज एटॉमिक नंबर इज 12. तो व्हाट इज द मास नंबर? द मास नंबर विल बी 24. लेकिन इसके नीचे जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 है. यू आर एक्सपेक्टिंग इट्स मास इज कमिंग एज 26, बट मास विल बी 27. ओके, सोडियम को ही देख लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है?
सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, इसका मास हो गया 23, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग टू बी 22, मतलब एक ज्यादा आ गया ना, ये एक ज्यादा कौन है हमको समझना पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे, ये ही ज्यादा हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ पे 13, व्हाट इज द 13 रिप्रेजेंट, जेड रिप्रेजेंट ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 ही है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स को आप कैसे निकालोगे, C A इक्वल टू समेशन ऑफ n प्लस p, राइट। अब ये आ गया 27 इक्वल टू n कितना, n कितना हमको निकालना है, प्रोटॉन हो गया 13, तो n कितना होगा 27 माइनस 13, तो 13 you are expecting but eventually you will get 14 न्यूट्रॉन। 14 न्यूट्रॉन कहाँ होता है, एल्यूमिनियम में होता है। लाइकवाइज तुमको इवेलुएट करना है कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, just evaluate carbon 6 12, sodium 11 23, okay, oxygen 8 32, so you have to evaluate electron proton and neutron, electron proton and neutron। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जेड हो गया 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो गया 6, प्रोटॉन भी हो गया 6, इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6, मास 12 है ना, तो n क्या होगा, n को कैसे निकालते हैं, a माइनस पी करने से कैसे होगा 12 माइनस 6, मतलब यहाँ पे भी 6 आने वाला, ठीक है। तो सोडियम में कितना होगा, जेड हमको मिला 11, तो मतलब 11 अगर है तो प्रोटॉन 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा, देन इट इज सिंपली 23 माइनस 11, दैट विल बी 22। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, Z 8 है, तो एकदम कंफर्म रहो इसका नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 8 ही होगा, इलेक्ट्रॉन 8 ही घूमते रहेंगे ऑर्बिट्स में, और सॉरी इसका 16 है और मास कितना है 16, मतलब 16 माइनस 8 इज कम एज 8, ओके। ऑक्सीजन एटॉम का एटॉमिक नंबर 8 है, मास हो गया 16, तो so as you can calculate numbers of electron proton and neutron, this is very important and very basic thing, all right, this is the way how do you represent an atom, ये हो गया मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी बोलते हैं एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। अब देखो एटॉम को कैसे हम कंसीडर करते हैं, व्हाट इज द बेसिक एटॉमिक मॉडल, जैसे ये हो गया क्लोरीन का एटॉम, इसको देखो जरा, क्लोरीन के बारे में क्या बात करेंगे, पहले हमेशा बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर के बारे में, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, दैट इज 17। अगर तुमको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है 17 है। अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स ऑलवेज रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या होता है, यू ऑल हैव द बेसिक आइडिया, एटॉम्स का जो सेंटर होता है ना, जहां पे कंसेंट्रेटेड मास होता है उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, एंड न्यूक्लियस अलोन प्रोवाइड द होल मास ऑफ द एटॉम, मतलब एटॉम का पूरा मास कौन प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। तो देखो 17 प्रोटॉन कहाँ है, यहाँ है, I don't know the number of neutron, but I know the numbers of electron, 17 इलेक्ट्रॉन, ये 17 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, कैसे घूमते रहते हैं, by following a definite pattern, that is 2.8.7, 2.8.7 मतलब इसे it is said to be electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है, एक एटॉम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम सजा रहे हो इलेक्ट्रॉन को इन ए डेफिनेट पैटर्न, उसी को बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को सजाने का जो प्रोसेस होता है we talk is as electronic configuration। अब 2.8 क्या होता है, ये जो देख रहे हो दिस इज अ फर्स्ट सेल ऑफ आवर एटम, इसको बोलते हैं n इक्वल टू 1, इट इज
नाइट्रिक एसिड के पार्टिकल्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम को क्यों मैटर बोलेंगे? क्योंकि परफ्यूम इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल दैट क्रिएट काइंड ऑफ स्मेल, you know, like chair is a matter, it's made up of solid matter, air is a matter, it's made up of gaseous particle. Okay, this is very basic question. Second, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Yes, because whenever hot sizzling food is served, we get the smell of the hot sizzling food in the air, because the particles present in the dish comes in the contact of air and they travel fast because the particle in the air have the highest kinetic energy. Okay, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? इसका मतलब क्या है? डाइवर जो मतलब स्विमिंग करते हैं ये इजीली क्या करते हैं? पानी को काटते हैं। पानी को कैसे काटेंगे? क्योंकि पानी व्हाट इज वाटर? वाटर इज ए कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड इट इज वेरी इजी टू ब्रेक दोस बॉन्ड। ओके, वाटर में क्या बॉन्ड है वही मतलब आंसर में आएगा। सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब वाटर कैसा होता है? ऐसा होता है वी शेप का। ऑक्सीजन वी शेप का ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन एटम होता है। वाटर इज कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन। अब इनके बीच में क्या है? इनके बीच में आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक डॉटेड लाइन, डॉटेड और डैश लाइन। डैश लाइन क्यों देते हैं? बिकॉज इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज आयनिक बॉन्डिंग। Therefore, a diver is able to easily cut through the water in a swimming pool because of the weak force of attraction. Weak force of attraction का मतलब क्या है? पानी में कौन सा weak force है? यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, it is a property of water that attributes to easy bonding. You need to know water में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर का एक मॉलिक्यूल कैसा होता है? दिखने में ऐसा होता है। This is seems ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है who has two lone pair and two bone pair. What are the characteristics of the particle of matter? What are the characteristics? The characteristic of particle of matter is presence of intermolecular space between them. Yes, particle में intermolecular space होते हैं, solid में बहुत कम होते हैं। क्योंकि solid दिखने में कैसे होते हैं? तो अब matter के बारे में बोला, matter के बारे में बोल रहे हैं ना, पहले लेते हैं एग्जांपल सॉलिड। तो सॉलिड में ऐसे होते हैं पैक्ड स्ट्रक्चर, फिर भी स्पेस होते हैं। ठीक है, फिर भी स्पेस होते हैं। ऑल्दो दे आर पैक्ड वी हैव स्पेस। व्हाट अबाउट द लिक्विड? लिक्विड में पार्टिकल्स ऐसे होएगा कि नहीं? ऐसे होएगा पार्टिकल्स, लेस ऑर्गेनाइज्ड। एंड इन गैसियस, गैस में ऐसे होंगे। गैस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूल के बीचों बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ गैस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज particles are in constant motion. They attract each other. Yes, they should have attraction force, and that attraction force will be different. That can be ionic kind of attraction, electrostatic force of attraction, covalent bond, metal bond, coordination bond. All matter is composed of very small particles which can exist independently. Alright. But these are the questions. You can write the questions. Give regions a gas fills completely the vessel in which it is kept. Why? Because gas occupy all the volume in which it has been kept. A gas exerts pressure on the wall of the container. हाँ, gas क्या करता है? Pressure देता है, क्यों नहीं देता? So, gas का क्या होता है? Gas सपोज ये तुम्हारा एक कंटेनर है, कोई भी शेप ले लो कंटेनर का, यहाँ पे गैस पार्टिकल जैसे पकड़ लो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस। अब ये क्या करेगा? ये वॉल में ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर इट विल अप्लाई फोर्स, सो द वॉल ऑफ द कंटेनर इट विल कोलाइड विद ईच अदर। क्यों करेंगे? बिकॉज इनमें काइनेटिक एनर्जी है। अब जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। मतलब यस, गैस पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली एंड दे आर प्रोवाइडिंग pressure on
the wall of the container, on the bottom of the container, and they are colliding with each other. यही रीजन है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर करता है the wall of the container because of this force per unit area. All right. Now ignorant chamber should be called a solid. You know why it should be called a solid. We can easily move our hand in the air to do the same thing to a solid block. Of course, we need a gravity expert. Okay. So do these questions. Convert the following temperature to Celsius. पहली बात ये है, first of all you have to write कि 0 डिग्री सेल्सियस. अब सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर का यूनिट है. And what is the SI unit? Is Kelvin. More precisely, this is 15. 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन. मतलब 0 को लिखोगे तो केल्विन के फॉर्म में इतना होगा. तो 300 केल्विन मतलब क्या? तो उसको उल्टा करके लिखो. You have to subtract 273. मतलब हम लोग इसको 273 केल्विन ही कंसीडर करेंगे. तो 300 केल्विन, 300 माइनस 273 ये 27 डिग्री हो गया. 573 माइनस 273 300 डिग्री सेल्सियस हो गया. Like as how will you express 25 डिग्री सेल्सियस in Kelvin? केल्विन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 25 प्लस 273 केल्विन, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, 290. Alright, this is the simple conversion. Okay. Now let's talk about elementary ideas of the structure of an atom. एक एटम में क्या होता है? An atom is consists of subatomic particles. Atom is consists of subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है प्रोटॉन, और उसके बाद होता है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई. अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसके हेड में हम नेगेटिव लिखेंगे. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल. ऑलराइट. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? सेम ही होता है लेकिन प्लस में होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है. दे आर ऑपोजिटली चार्ज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम. और इसका चार्ज 0 है, मास 0 नहीं है. तो सबएटॉमिक पार्टिकल जो अब तक हम लोगों को पता है, मतलब और भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर, क्वार्ट्ज पार्टिकल आर देयर, but we need to study only about electrons, protons and neutrons. Okay. About the isotopes of hydrogen. We will talk later about the isotope of hydrogen. In basic things, hydrogen का atomic number 1 है. Yes, atomic number 1 है. इसका मतलब क्या है? मैं बार-बार बोल रही हूँ. अगर atomic number अगर Z 1 है, if the Z is 1, if Z is 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है हाइड्रोजन में, वो ये हो गया. यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा? 1 है. ठीक है. तो प्रोटॉन कौन सा है? ये है. अब यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? That is my question. अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है. A कितना है? 1. और N प्लस P होता है 1, तो ये भी 1 हो गया. तो N क्या होगा? 1 माइनस P. अब P कितना है? 1. Are you getting my point? The neutron present in this isotope of hydrogen is 0. मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है. देखो न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूट्रॉन resides in the center of an atom. तो यहाँ पे only 1 proton and 1 electron है. यही इसी को बोलते हैं फर्स्ट आइसोटोप, प्रोटियम. सेकेंड में क्या हो गया? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए मास कितना हो गया? मास 2 हो गया. ठीक है. और थर्ड में जो ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन है, तो मास कितना होगा? 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3. लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर अभी 1 है. मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. प्रोटॉन कितना है? 1. जस्ट देयर आर 2 न्यूट्रॉन. यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1 है. मतलब इलेक्ट्रॉन कितना? 1. प्रोटॉन कितना? 1. जस्ट न्यूट्रॉन इज 1. एडिशनल यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे 1. तो इसको अगर सम अप करोगे तो तुमको 1 + 1 2 मिलेगा. दैट इज अ मास नंबर दैट कंट्रीब्यूट्स द होल मास ऑफ द एटम. तो these are the 3 isotopes of hydrogen. पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम.
what do you mean by atomic structure? The atomic structure refers to the structure of an atom comprising a nucleus. एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, containing protons and neutrons, and electrons are revolving around the nucleus in some starting path known as orbit. Okay, and they revolve around the nucleus. Discovery of this subatomic particles. तो discovery of subatomic particles में important points क्या है? Important point है who discovered electron. Electrons was discovered by J.J. Thomson. Proton was discovered by E. Goldstein. Okay. And nucleus, nucleus was discovered by Rutherford. Rutherford Thomson के एक scholar थे, and he has his own laboratory. At the time, he was doing so many experiments with gold foil and radium. As you know, what is radium? Radium is very expensive. It is a radioactive particle. Okay? तो Rutherford experiment के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? J.J. Thomson ने फाइनली डिस्कवर किया था, and J.J. Thomson got Nobel Prize. J.J. Thomson got Nobel Prize for providing the first atomic model, मतलब एटॉम दिखने में कैसा होता है. तब तक हम लोगों को पता चल चुका होता, तब साइंटिस्ट को पता चल गया था कि एक एटॉम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. यही बात पता है साइंटिस्ट को. अब J.J. थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया ऐसे कि ये एक एटॉम, व्हाट इज एटॉम? इट इज अ स्फीयर. It is a sphere of positively charged particle. एक sphere है जहाँ पे positively charged particle है. कैसे है? ऐसे ही uniformly distributed है. देख रहे हो? ऐसे ही होता है. ऐसे उन्होंने बताया. और इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? Electrons are embedded over. Electrons मतलब इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे embedded होता है. ठीक है? तो इसको याद रखो. क्या किया Thomson? Thomson told us that an atom is a sphere of positively charged particle where electrons are embedded over it. इसका मतलब क्या है? इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है. they are just uniformly distributed. ठीक है? और थॉमसन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दैट इज स्टिल राइट. बट ये एटॉम का मॉडल नहीं है. बट ही इवेंचुअली गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस मॉडल, एंड दिस मॉडल गॉट फेल. क्यों फेल हुआ? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये मॉडल फेल हो गया. ठीक है? इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? मतलब थॉमसन ने इस मॉडल को क्या बोला था? मतलब रिजेंबल किसके साथ किया था? इसको क्या था? प्लम पुडिंग के साथ. प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल. जैसे वाटरमेलन में क्या होता है? दिस इज रेड कलर वाटरमेलन. ठीक है? वाटरमेलन में क्या होता है? दिस इज अ रेड पार्ट. ओके, दिस इज अ रेड पार्ट. एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सीड के जैसे होते हैं कि नहीं? यस. पूरा का पूरा रेड पोर्शन होता है, ऊपर से उसके जो सील होते हैं दे आर एम्बेडेड ओवर इट. तो उसको इसके साथ रिजेंबल किया है ना. एक वाटरमेलन ऐसा वाला वाटरमेलन कंसीडर करो जो पूरा का पूरा रेड है और उसमें ऐसे ऐसे उसके सीड्स हैं. तो उसको कंपेयर किया था एटॉम के साथ. बट इवेंचुअली दिस मॉडल वाज फेल as Rutherford did this experiment. So Rutherford, a student of J.J. Thomson, modified the atomic structure with the discovery of another subatomic particle called, because this is a subatomic particle, it is a space that is known as nucleus. His atomic model is based on the alpha ray scattering experiment. Alpha ray scattering experiment. This is the alpha ray scattering experiment. See, this was a radiating alpha particle. तो पहली बार ये अल्फा पार्टिकल होते क्या है? अल्फा पार्टिकल. अब तुम लोगों को एक एटॉम के बारे में आइडिया हो गया. कहाँ से हो गया? थॉमसन से हो गया. पहले उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल लिया. गोल्ड फॉइल सिल्वर वेरी थिक एम, और यहाँ पे एक रेडियम लेकर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को रेडिएट किया. अल्फा पार्टिकल. Now let me tell you, alpha particle is none other than helium 2 पॉजिटिव पार्टिकल. तो हीलियम क्या है? एटॉमिक नंबर 2 है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है.
दो न्यूट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो निकाल दिए गए। नाउ इट इज अ कैटायन, इट इज ए हाईली पॉजिटिवली चार्ज कैटायन माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल। तो तुमको पता है एक एटॉम ऐसा होता है, मतलब थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में पता चल गया था, जहाँ पे प्रोटॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? प्रोटॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यू आर मतलब इजेक्टिंग अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स गोल्ड फॉइल। तो यू विल एक्सपेक्ट दैट क्या करोगे, ये जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जा रहा है ना एटॉम, ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ऑलराइट, मतलब दिस वाज योर एक्सपेक्टेशन व्हेन रदरफोर्ड वाज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। लेकिन क्या हुआ, इसका पूरा उल्टा हो गया। 99% ऑफ द अल्फा रे, मतलब 99% ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। A few of them, मतलब यहाँ पे एक स्क्रीन था, इसका स्क्रीन था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन था, इसको मेड अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, एंड वन मतलब ऐसे जाके एक बाउंस बैक हो गया, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000, 1 रेडिएशन आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक। क्यों बाउंस बैक हो गया? बिकॉज इट वाज अ सिल्वर एटॉम। सिल्वर का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद हीलियम। इससे हीलियम क्या है, हीलियम का मास कितना है? 4 AMU है ना। तो ऐसे जाके बाउंस बैक कब हो पाएगा? जब कोई हैवी मास इसके सेंटर में है, मतलब एक ही को बाउंस बैक कर रहा है। तो इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स बने। कंक्लूजन्स क्या बने? ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना, मतलब प्रोटॉन जो है ना, ये प्रोटॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है एक एटॉम में। प्रोटॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन होता है एक एटॉम के सेंटर में, एक सर्टेन रीजन में ये प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पहला वाला कंक्लूजन था, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? तो रदरफोर्ड was the first scientist who introduced the word ऑर्बिट। उन्होंने कहा था न्यूक्लियस के अगल बगल में, मतलब सराउंडिंग में ऑर्बिट होगी, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक है, क्या बोला कि एटॉम के सेंटर में, एटॉम के कोर में जो स्पेस होते हैं उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और उन्होंने इसको क्रिकेट फील्ड के साथ कंपेयर किया। अगर एटॉम का साइज अगर क्रिकेट फील्ड के समान है, तो क्रिकेट का जो बॉल होता है ना, छोटा सा बॉल होता है, उस बॉल के साइज का होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, और उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। वो बड़ी बात क्या था? he resembles his atomic model with our solar system model। जैसे क्या होता है, सन होता है, कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है, सेंटर पे सन होता है, और बाकी सब प्लेनेट, ये मर्क्यूरी हो गया, ये वेनस हो गया, ये आर्ट हो गया, ओके, रिवॉल्व करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल पाथवे में रिवॉल्व करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो he resembles the atomic model with the solar system model, जहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियस को किसके साथ रिजेंबल किया गया है? सन के साथ। अब सन आर्ट को क्या करता है? खींचता रहता है। क्यों खींचता रहता है? बिकॉज दे हैव ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन बिटवीन देम, बट आर्ट डज नॉट लाइट, बट आर्ट फॉल्स नहीं करता है, आर्ट डज नॉट फॉल्स ऑन द सन। व्हाई? बिकॉज आर्ट यूटिलाइज दिस फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r। क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तुम लोग सबको पता है, तुम लोगों ने सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। कोई फोर्स अगर तुमको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तुम सेंटर की तरफ नहीं जाओगे, यू विल जस्ट स्टार्ट टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर। इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये। क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा रे passes through the atom once out of 20,000 bounce back, और most of them are degree। इससे क्या पता चल गया? Those were the conclusion that I have drawn। Now say scattering of alpha particle by thin gold foils suggests the presence of किसका कर बोलते हैं? पढ़ो जरा। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन से एटॉम? नो। प्रोटॉन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। प्रोटॉन के बारे में किसके बारे में बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द